Welcome to an exclusive interview. Dr. Rashmi Karandikar, DCP Traffic Thane, courtesy India Unbound. Please tell us about your childhood days, family background. Childhood days, family background. I came from a typical Marathi middle class family. मेरी फैमिली बैकग्राउंड में मेरे माता पिता दोनों जो है वो पिताजी मेरे बैंकर थे, माता जी मेरी टीचर थी, प्रिंसिपल, एंड मेरे दादी और दादाजी दोनों प्रिंसिपल. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम वन कैन से टीचर्स फैमिली, professors and teachers family. Okay. How did you complete your doctorate? During 2009, I think 2008 or 2009, I was working at D&D. So that time I thought it's a different job. My first job in a traffic, so I was having some time in my hand. So I thought better is utilize for my education purpose, and I enrolled in Pune University for my PhD, and I finished my PhD under guidance of Dr. G.V. Kande from Pune University, and my subject was impact of globalization on urban rural with special reference to families. Okay. Can you reconstruct your journey from being a child to being a DCP traffic? Construction. I am not engineer. I can call myself as a statistician, sociologist, or anthropologist. So from that point of view, it's a different journey. मैंने कभी सोचा नहीं था that I will land in police service. I will tell it's an accident. What are your tricks and tactics to clear MPSC? Again, it's a good question, but now syllabus is changed. I worked hard, more than 18 hours. That time I was finishing my MA, post-graduation in anthropology and sociology at Mumbai University. So in Kalina campus there is no library called Jawaharlal Nehru Library. I used to sit around 18 hours in a day, and that was something I can say a dedication, hard work. Studious nature, that's it. You, since from your childhood days, you wanted to become a police officer? No, nothing like that. But my granny's aim was she wanted me to join the public service as a collector. So हाँ yes, मैं collector बनना चाहती थी. गलती से सभी गाड़ी इंसिडेंट टाइप के आ गए, लैंडेड इन पुलिस. कभी-कभी गाड़ी वो पटरी से जाती है ना. प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे चली. Within a year of your posting, year and two, you implemented Safe Journey mobile app. How did that idea came to in your mind? When I joined DCP Traffic in Thane, one burning issue was there. You must be knowing about Swapna Viran. एक इंजीनियर लड़की थी जिसको रिक्शा से जाते वक्त जो है उसको एक्सीडेंट हुआ था एंड शी वाज इंजर्ड. सो ऐसा नोशन था थाने एक्ट में दैट रिक्शा जर्नी इज नॉट सेफ फॉर द वुमेन. सो आई वाज प्लानिंग कि क्या किया जाए ताकि लड़कियों को थोड़ा सेफ्टी फील हो, थोड़ा सिक्योरिटी फील हो. एंड देन ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत सारा डिस्कशन होने के बाद वी गॉट द कंसेप्ट ऑफ ट्रैफिक स्मार्ट आईडी. दैट इज आईडी. वो रिक्शा वाले जहाँ पे बैठता है उसके पीछे लोग लगाते हैं. उससे फ़ायदा ये होता है उस पर हेल्पलाइन नंबर है. वी इंक्लूडेड विमेन हेल्पलाइन नंबर प्लस ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर. इन दैट ऑन दैट कार्ड वी आर हैविंग few another thing like that. We are having name of rickshaw owner, then license number, उसका परवाना, और उसके साथ we are having one should I say जैसे एक IRD है उसके साथ. अगर हम वो क्लिक करें तो we will get that, and we are having this Safe Journey application on our mobile phone. तो 8 पॉइंट जो रिक्शा की इंफॉर्मेशन है हमारे मोबाइल फ़ोन पे आ जाती है. अगर हम वो क्लिक ना करें तो एवरी वुमन इज नॉट टेक सेवन. You have to think from that point of view also, because
women's age is right now from I can say 8 years to 60 years or 66 or more than that. तो अगर जो टेक सेवी नहीं है वो क्या करे? तो अगर वो टेक सेवी नहीं है, लेकिन आजकल हमारे हाथ में सभी के हाथ में कैमरा फोन है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन, बट आई थिंक नाउ 2000 रुपीज फोन में भी कैमरा है. यू कैन हैव दैट क्लिक ऑफ दैट कार्ड. आप सेव करके रखो, अगर आप ज़रूरत पड़े तो यू कैन यूज दैट, अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो इमीडिएटली डिलीट कर डालो. इससे फ़ायदा ये है कि अगर कुछ डिस्ट्रेस है, एनी प्रॉब्लम हो देयर, इमीडिएटली आइदर यू कैन कॉल ऑन वुमेन सेफ्टी नंबर, और फिर हमारे ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर है 3, तो इनमें से एक कॉल तो आप अचीव कर सकते हो. थर्ड, उसका फ़ायदा ये है कि नाउ मोर देन 34,000 रिक्शा वालों का डेटा मेरे पास है, एंड वी आर हैविंग डिटेल डेटा. 12 पॉइंट्स का डेटा है, जिसमें उसने किस बैंक से लोन लिया है, उसका नेटिव प्लेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो वो सब इन्फो है. ये जब हमने रिसर्च किया तो इन दैट रिसर्च इनफैक्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट से भी थोड़ा रिसर्च जो है उनके साइट में से शेयर किया. सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर क्रिमिनल साइकोलॉजी आई एम टॉकिंग, अगर क्रिमिनल की इन्फो पुलिस के पास है, सो ही विल थिंक 10 टाइम्स बिफोर कमिटिंग एनी क्राइम. 99% वो सोच के ये करेगा नहीं, बिकॉज माई इन्फो इज विद पुलिस एंड पुलिस कैन गेट कैच मी आफ्टरवर्ड्स. सो ये सब सोच के वो करेगा. तो ये थी. सेकेंडली जो कलर है, अगेन दैट इज ब्राइट येलो कलर. अगेन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी दैट इज अ कैची कलर, यानी आपको स्पेसिफिकली देखने की जरूरत नहीं. ये प्लेस भी ऐसी है कि रिक्शा वाले के पीछे, सो कम्यूटर्स यू नो कैन इजीली वॉच दैट कार्ड. उसके लिए कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं. इट्स वेरी कैची. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि वो स्क्रैच फ्री है, बिकॉज यू नो अगर कोई औरत बैठती है तो हो सकता है उसके साथ बच्चे हैं, एंड यू नो बच्चों की आदत ऐसे है ना, दे विल स्क्रैच हियर एंड देयर, अगेन वो प्रॉब्लम हो जाए. सो दैट इज अ स्क्रैच फ्री कार्ड. फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वुमेन साइकोलॉजी भी हमने स्टडी की. आजकल की जो जाने वाली वर्किंग वुमेन है, करियर वुमेन है, एनी वुमेन, एक तो उसके हाथ में 2 बैग होते हैं. अगर बच्चे साथ में हैं तो 2 बैग, नहीं है तो 1 बैग तो कम से कम होता है. आजकल थोड़ा सा फियर फैक्टर वुमेन के मन में बढ़ गया है. यू नो दे ऑलवेज थिंक कि रिक्शा जर्नी सेफ है कि नहीं, टैक्सी जर्नी सेफ है कि नहीं. आफ्टर निर्भया एंड दैट उबर इंसिडेंट्स थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो इसमें वो क्या करती है, वो नंबर लिख के लेने की कोशिश करती है, बट इन दैट उस बैग से पेन निकालना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. सबसे वो यू नो बैग में से पेन निकलने के बाद वो हाथ पे लिख के देती है. सेकेंडली वो लिखने के लिए उसको रिक्शा के टैक्सी के पीछे जाना पड़ता है. हियर यू हैव रेडीमेड अवेलेबल ऑल द डेटा, एंड वो लिखने के बाद 10 मिनट में स्वेटिंग की वजह से वो निकल जाता है. सो जो भी वो करती है वो यूज नहीं होता है. बट नाउ एवरीबडी इज हैविंग फोन, जैसा आई सेड. नाउ दिस इज अ सेल्फी का जमाना. आप 10 बार खुद की सेल्फी निकालते हो तो वन क्लिक यू हैव फॉर योर सेफ्टी. जस्ट क्लिक दैट. इफ यू रिक्वायर टिप इट, अदरवाइज रिक्शा से उतरने के बाद आप रिमूव कर दो. इवन हमने बच्चों को भी कहा कि अभी ट्यूशंस जाते हैं, तो इसमें मेरी सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट एक पिताजी की तरफ से थी, एंड आई वाज वेरी मच शॉक कि यू नो कोई जेंट्स आके ये मुझे बोलेगा. अभी मुझे थोड़ा सिक्योर लगता है. मैं मेरे बच्ची को कहता हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो माँ बाप दोनों कमाते हैं, तो जाते वक्त ये क्लिक करो और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो. तो जब वो फोटो आता है मैं सिक्योर रहता हूँ कि मेरी बच्ची किस रिक्शा से जा रही है, वो मुझे पता है. सो दैट्स द थिंग. एंड 34,000 से ज़्यादा हम पानी में बिठा चुके हैं. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. अगर ये कंपलसरी किया जाए तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा, एज पर साइकोलॉजी हम प्रिवेंशन तो करने का सोच सकते हैं. एंड अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो तो वी आर हैविंग डेटा, हम उस बंदे तक पहुंचने का प्रयास 100% कर सकते हैं. तो ये आपका थीम रिक्शे तक ही सीमित रहेगा कि दूसरे टैक्सी हैं, आजकल बहुत सारे कैब नए आ रहे हैं? एक्चुअली कैब में ये उठाना चाहिए. हमने ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लिखा भी था कि दिस इज अ वेरी नोबल आइडिया एंड वन शुड अडॉप्ट. आई थिंक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसके बारे में सोच रहा है और उनको जल्दी से सोचना चाहिए, बिकॉज इससे 2 चीज़ें होगी. एक तो अपडेट डेटा होगा हमारे पास. सेकेंडली, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप कंपल्सन करोगे, हर एक रिक्शा वाले को पता होगा मेरी इंफॉर्मेशन पुलिस के साथ है. चोर भी उस एरिया में चोरी नहीं करता जिस एरिया में उसकी पहचान होती है. राइट.
What is your perception about traffic in Thane city? Thane, Thane is a very developing city right now. उसको अभी तक मुंबई का छोटा भाई समझा जाता था, बट अभी थाने by leaps and bounds वो एक्सपैंड हो रहा है. थाने में अभी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं. सो रोड की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, ट्रेन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है. सिमिलरली आप अगर देखिए तो आपको पता चलेगा यहाँ पे टैक्सी है और अदर सर्विसेज अच्छे हैं एंड मुंबई के पास है. तो टू एंड फ्रो करने के लिए बहुत और रहने के लिए इट्स अ गुड रेसिडेंशियल प्लेस. इससे प्रॉब्लम ये हो गया है कि सिटी बढ़ रही है, उसके हिसाब से ट्रैफिक भी बढ़ रही है, और वो जो बढ़ती ट्रैफिक है उसको हैंडल करना इज अ वन थिंग. जो मैं 4 व्हीलर एंड बाकी की बात, रिक्शा की बात कर रही हूँ. सेकेंड थिंग, वी आर हैविंग दिस हाईवे जो गुजरात को अटैच है एंड राइट नाउ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इंडिया इज द हाईएस्ट. सो JNPT से जितना भी माल गुजरात के लिए जाता है वो इस रास्ते से जाता है. सो मुंब्रा, शिवफाटा एंड ऑल, उनका एरिया का प्रॉब्लम है दी हेवी ट्रैफिक. जो जितने भी कंटेनर्स JNPT से होके नासिक या फिर गुजरात के लिए जाते हैं, दैट द सेकंड थिंग. थर्ड मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस कमिश्नरेट इज दैट देयर आर 45,000 लीगल गोडाउन इन नागपुर, व्हिच इज एशियाज फर्स्ट warehousing complex. It's a huge complex, okay? तो उसमें आप 45,000 में लीगल बोलोगे, so you can count कितने होंगे. And हर warehouse में अगर 5 गाड़ियाँ भी आती है, so just multiply by that much lakhs vehicle daily entering in that area and exiting from that area, and traffic management is the huge issue in that area because इतने सारे vehicles को at a time हैंडल करना, उसमें से 4 व्हीलर्स के ट्रैफिक हैंडल करना, उसमें से एम्बुलेंस को अलग से जगह देना, so it's a huge task. That's true. Thane is a financial hub also. It's nearby to the city, Mumbai. Peak time traffic is really worse, and after 9, I think, and then you were saying, all container is moving towards the Gujarat. It's very difficult to travel in that particular road. What is your plan to smooth functioning of traffic in peak hour and such type of? We already sent proposal for Kopri Bridge, for Porbandar and other area, but I have 2 solutions. One is a long term, one is a short term. Long term के जो भी proposal है हम लोग वैसे भी जो concern agencies है वहाँ पे भेज चुके हैं. But then that's the long term, आजकल इंस्टेंट का जमाना है. इंस्टेंट कुछ दिखाई दे तो ठीक है, अदरवाइज ट्रैफिक जाम मुंबई में तो लोग बहुत अच्छे से ट्रैफिक जाम हैंडल करते हैं. लोगों को कुछ लगता नहीं है कि मुंबई में ट्रैफिक जाम है, ये तो होता ही है. बट वंस दे क्रॉस द मुल्क दे वांट सब स्मूथ होना चाहिए. मेरा मेन प्रॉब्लम था कोबरी, तो वहाँ पे भी एडेड वन एक्स्ट्रा लेन. जो पीक आवर में हम लोग क्या करते हैं, उस जिस साइड ट्रैफिक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई टूवर्ड्स थाने फ्रॉम आफ्टर 6 o'clock, सो हम लोग मुंबई जाने वाले इंजन अडॉप्ट कर देते हैं, सो दैट जो भी ट्रैफिक है, रोड तो उतना ही है भाई साहब, मैं रोड तो एक्सपैंड नहीं कर सकती, बट आई कैन यूज इट विद सम सॉल्यूशन. तो वैसे करके आई एम वेरी मच हैप्पी कि वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हो चुका है एंड पीपल आर हैप्पी विद दैट. सो वो एक था. सेकेंडली विद इन 6 or 7 month एक श्रीनगर से लेके पोरबंदर तक एक पैच अंदर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं एंड आई एम थैंकफुल टू थाने म्यूनिसिपल कमिश्नर जायसवाल सर, उनकी वजह से वो हो रहा है. अगर वो जितने जल्दी होगा तो आपको खोपड़ी से आने के बाद अंदर तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप घोड़बंदर तक जा सकते हैं एंड आपका टाइम ओनली फॉर 4 व्हीलर्स स्मॉल व्हीकल्स, तो वो अपना वे बच जाएगा. सेकेंडली PWD ने और कुछ प्रोजेक्ट्स चालू किए जैसे कि बोरीवली के लिए टनल वे एंड ऑल, तो वो भी होगा. बट पीक आवर्स के लिए राइट नाउ हम जो सुबह और शाम को एक्स्ट्रा लेन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो चुका है. एंड पीक आवर में मेरी प्रायोरिटी हमेशा यही रहती है कि जो मुंबई जाने वाले सर्विस गोर्स है वो कहीं अटक ना जाए. सो वी ऑलवेज अलर्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड. एक हाथ दूसरा ट्रैफिक रिस्क
इस वजह से बढ़ जाता है कि कोई गाड़ी बंद पड़ गई या कुछ बस बंद पड़ गई। अदरवाइज आई विल टेल यू फ्रॉम घोड़बंदर टू मुंबई पीक आवर में आप मैक्स 15 मिनट में पहुंच जाओगे। इतना तो मुंबई में भी नहीं होता है। Great. What initiatives are being taken against drunk driving towards the traffic rules राइट and नाउ over speeding? राइट नाउ मोर देन 5,500 से ज़्यादा हमारे केसेस अभी तक हुए हैं, 5,500। So it's a huge, and last year also we did 764 in one day. 31st को जब ending था तो 775 not 64. We were highest in Maharashtra. I see. 775 in one night. Of course I'm thankful to my joint CP Lakshmi Narayan sir because 6 बजे तक हमारी पूरी टीम इंक्लूडिंग जॉइंट सीपी रास्ते पे थी। एंड हम लोगों ने स्पेशल ड्राइव इसलिए लिया था बिकॉज हम किसी की न्यू ईयर की शुरुआत किसी फैटिलिटी से या एक्सीडेंट से नहीं करना चाहते। सो अगर पुलिस अलर्ट रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा तो हर एक जन हैप्पीली न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकता है। सो एंड डेली वी आर बीइंग ऑलमोस्ट अराउंड 80 to 90 केसेस डेली ड्रंक एंड ड्राइव पे थाना में कर रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग, इनफैक्ट अभी थोड़ा सा रोल भी बदल चुका है। अभी ऐसे हो गया है जो होटल्स है या रिसोर्ट्स है वो लोग ड्राइवर हायर करते हैं या कैब हायर करते हैं। अगर उनको उनके बिजनेस चलाने के लिए वो हायर करते हैं, और अगर कोई कस्टमर है तो उनके लिए वो ड्राइवर दे देते हैं कि भाई आप हमारे होटल में आओ, खाओ सब करो, ये ड्राइवर भी लेके जाओ। सो थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, जिसके लिए 4 व्हीलर्स में ये प्रमाण कम हो गया है, बट यस 2 व्हीलर्स आर देयर एंड वी आर ट्राइंग। So do you have any plan to educate and bring awareness in the youngsters? या वो भी हम रोड सेफ्टी वीक में ही नहीं, हम लोग कंटिन्यूअसली करते हैं। हम लोग कॉलेजेस में मूवमेंट्स करते हैं, सेफ्टी के मूवमेंट्स है, अगेंस्ट ड्रंक एंड ड्राइव के मूवमेंट्स है। Some happy streets also you have been. Yeah, we are having happy street also as a concept by Times of India और बहुत सक्सेसफुली हुआ। इनफैक्ट मुझे लगा नहीं था हैप्पी स्ट्रीट मोर देन 10 सिटीज में होता है ऑल ओवर इंडिया, बट जितना रिस्पॉन्स थाने में है अप टू 12,000 एट अ टाइम, उतना रिस्पॉन्स ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है। हैप्पी स्ट्रीट में और एक फायदा ऐसा होता है कि जितने लोग आते हैं यहाँ स्टॉल के थ्रू एजुकेट करते हैं, हमारे लोग होते हैं, लोगों के थ्रू हम एजुकेशन देते हैं, या फिर हमने पोस्टर्स बनाए उसके थ्रू एजुकेशन होता है। सो हर एक तरीके से हम लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड ज़्यादातर हम उसमें सक्सेसफुल हैं। According to you, what is the ratio of public discipline towards traffic rules in Thane? I am trying to inculcate road safety in Thane, but unfortunately अब तक वो नहीं हो पाई। Thane is one of the most populated cities in India. Managing traffic in such city is surely not an easy task. How do you manage? As you said, you are experimenting many things and trying to control such activities. थाने is having its own sweet flavors. थाने सिटी के फ्लेवर कुछ अलग है, भिवंडी के ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स कुछ अलग है, कल्याण के ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स कुछ अलग है। बेसिकली इट्स अ ह्यूज एरिया एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन द सेंस, जैसे कि मैंने आपको बोला लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसी। इन शॉर्ट टर्म पॉलिसी अगेन आई एम थैंकफुल टू माय टीम ट्रैफिक। इन शॉर्ट टर्म पॉलिसी हम हर एक यूनिट को एक प्रॉब्लम लेने को बोलते हैं जो उसकी यूनिट में है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम रिलेटेड विद ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सम वन वे सम और अदर एनी प्रॉब्लम, और ऐसा प्रॉब्लम चाहिए जो 1 महीने में खत्म हो। ऐसा नहीं है कि लिंगरिंग रहे। अभी सॉल्यूशन तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ से ब्रिज हो तो अच्छा है, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर 5 years or 6 years। तो समथिंग लाइक दैट कि जो रिलेटेड विद कॉमन पब्लिक हो, जो सॉर्ट आउट करने के बाद कॉमन पब्लिक को सहूलियत हो, ऐसा प्रॉब्लम वेरीफाई करके विद इन 1 month वो सॉल्यूशन निकालना है। दैट्स इट। तो हर महीने एक सॉल्यूशन निकालना है। आई एम हैविंग 22 यूनिट्स, तो एक महीने में कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं एंड हम लास्ट में उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि कितना हुआ है, और वो चीज़ भी ऐसी करनी है कि वो फुलफिल हो लास्ट तक। ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए लगाया और फिर बाद में हुआ नहीं। सो
कि छोटे छोटे तरीके से, जैसे कि मैंने अभी कोपरी का बोला, नाउ समवेयर यहाँ पे तत्वज्ञान पे शाम को प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ट्रैफिक जो है अप टू जुपिटर आ रहा था। सो भी एक बार पेट्रोलिंग के दरमियान मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर वो सिग्नल हम बंद कर दें, एक तरीके से ट्रैफिक शुरू करें, तो जो घर जाने वाले हैं उनके कम से कम 7 से 10 मिनट कम हो जाते हैं ड्यूरिंग पीक आवर। आई एम नॉट सेइंग होल्ड। तो देन वी स्टार्टेड 6 से लेके रात को 9 तक हम सिग्नल बंद रखते हैं, एंड जब किसी को क्रॉस करना है तो मेरे ट्रैफिक वाले उसको क्रॉस करवा के देते हैं। ऐसे नहीं है कि क्रॉस नहीं कर सकते। द ओनली थिंग आस ट्रैफिक पीपल को गाड़ियाँ रुका के हर 5-7 मिनट के बाद क्रॉस करते हैं। उसमें फायदा ये हुआ कि पूरा ट्रैफिक जो था वो जुपिटर के यहाँ तक आता ही नहीं, पूरा फ्री फ्लो हो जाता है। What are the major challenges you are facing in Thane city as a subject of the traffic? First is the road safety, because I don't know why, but people are not following traffic rules. Simple आप हेलमेट का लीजिए या सीट बेल्ट का लीजिए। I don't know, I mean, I think यहाँ पे बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है, बेसिक सिविक सेंस की ज़रूरत है। दूसरा चैलेंज अगर आप कहें तो रास्ते, बहुत कम रोड है और जितने भी व्हीकल्स है ऑलमोस्ट उससे बहुत ज़्यादा है। तीसरी प्रॉब्लम है मेरे पास बिगेस्ट ट्रैवल से पार्किंग एरिया में। बिना पार्किंग एरिया के हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि गाड़ी पार्क लोग कहीं पे भी करते हैं, फिर टो करने के बाद वो कहते हैं कि टो करा, तो वो भी एक इशू है। What are the expectation you're from the government authorities and our honorable Chief Minister Devendra Fadnavis for the smooth functioning of the traffic in Thane and outskirts? एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर तो मैं नहीं बोल सकती मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि थाने में वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। बट एज ए जनरल सिटीजन मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ कि रोड सेफ्टी ये जो सब्जेक्ट है वो स्कूल में सिखाया जाए। एज ए EVS फ्रॉम 5th ऑनवर्ड्स कंपल्सरी 1 घंटा टिल 12। सो इससे फ़ायदा ये होगा कि आफ्टर 16 जो भी ड्राइवर आएगा, बिकॉज आजकल ऐसा है कि आफ्टर 16 आप बच्चे को चाबी दे रहे हो, तो रोड सेफ्टी के नियम और रूल्स कुछ भी नहीं सिखा रहे हो, विच इज़ द वर्स्ट पार्ट आई विल से, बिकॉज उसको कुछ भी नहीं मालूम रहता है। वो सिर्फ 16-17 साल का बच्चा अपने फ्रेंड से सीखता है, और ड्यूरिंग कॉलेज डेज इज लाइक अगर व्हीली किया तो लड़की पटती है, अगर रैश ड्राइविंग किया तो लड़की पटती है। सो नोशन उसके इतने गलत है कि वहाँ धूम स्टाइल से ड्राइव करो तो लड़कियाँ इम्प्रेस होती है, एंड उसी नोशन में वो सीखता है। सीखने के बाद एक रॉन्ग ओवरटेकिंग, एक ड्रंक एंड ड्राइव हो या फिर रैश ड्राइविंग हो, एक रॉन्ग डिसीजन और उसकी फैक्टर। So it should be compulsory. तो अगर कंपल्सरी हम सिखाए तो एटलीस्ट आने वाली जो जनरेशन है वो आने वाली जनरेशन रोड सेफ्टी समझ के आए। जब वो गाड़ी रास्ते पे लाए तो वो ऑल सेफ्टी रूल्स के साथ गाड़ी रास्ते पे लाए। आज आप मुझे बताइए, एक ज़माना ऐसा था कि कॉलेज खत्म होने के बाद पहला जॉब लगने के बाद आप बाइक लेते थे, एंड फर्स्ट जॉब से बाइक लेना इज अ बिग थिंग। नाउ हम लोग कार लेते हैं और 16 साल की बच्ची हो बच्चा हो, यानी वहाँ पे कुछ जेंडर बैस है नहीं, उनको शायद स्कूटी या एक्टिवा दो, इनको आप बाइक दे दो। लेकिन कोई भी घर से ये नहीं सिखाता कि सेफ्टी क्या होनी चाहिए। ओवरटेकिंग कोई भी ये नहीं सिखाता कि आपको सेफली ड्राइव कैसे करना है। हम खुशी में ब्रेक तो डालते हैं, लेकिन एक तरह से हम उनको सेफ्टी नहीं सिखाते। ऐसे अनसेफ ड्राइवर रास्ते पे आने के बाद आइदर उनको इंजरी होगी या वो किसी और को इंजरी करेगा, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। अगर कंपल्सरी करें, मुझे ये क्यों लगता है, नहीं मुझे ये क्यों लगता है, मेरी आने वाली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से बहुत उम्मीदें है, इसलिए आप इसमें भी मेरे से सहमत होंगे। पर्यावरण ये सब्जेक्ट इसके पहले किसी को नहीं पता, कुछ साल पहले ही है, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। हम 2000 के बाद का सब देख रहे हैं। आज के बच्चों को आप पूछो, उसको पेंसिल से लेके प्लास्टिक से लेके सभी चीज़ें मालूम है। ये चीज़ें कैसे मालूम है? जब उनको एजुकेशन में सिखाया गया है तभी मालूम है।
अगर हम रोड सेफ्टी के सभी टेक्निक्स अगर सिखाते हैं स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली लाइक योगा एक सब्जेक्ट का गुड आइडिया। हफ्ते में एक बार भी अगर हम अमल करते हैं कि नहीं ये सेफ्टी के रूल्स है, ये करना चाहिए। एंड इसके बारे में मेरे 2 प्रोजेक्ट भी अच्छे हुए हैं। हमने आपकी सेफ्टी for the metro cities in the coming future, it is going to be a big challenge. बिग चैलेंज। एंड मैंने 2 प्रोजेक्ट भी इसमें किए हैं जिसमें हम बच्चों तक जाते थे, उनको रोड सेफ्टी के नियम सिखलाते थे और उसके लिए हमने एनएसएस के कैडेट्स तैयार किए। वो जाके बच्चों को बताते थे एंड हम लोग बच्चों को ये कहते थे कि आप आपके मम्मी पापा से जाके कहो कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं, बिकॉज इट्स अ 2 वे, ओनली एक ये नहीं रोड सेफ्टी करता सिर्फ बच्चों का। आप उनसे जाके कहो कि अगर आप उनसे प्यार करते हो तो हेलमेट पहनो। किसी पुलिस वाले का 100 रुपए का चलन या उसकी जबरदस्ती ये किसी को बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन एक पिताजी के लिए अपनी छोटी बेटी के हेलमेट लेके आना, कहना इफ यू लव मी जस्ट वेयर दिस इज फॉर योर सेफ्टी, तो उस बच्ची का जो प्यार है वो प्यार का बॉन्डिंग शायद वो पुलिस बॉन्ड में नहीं है। Correct. Is the e-challan system in Thane region effective? In what way? Yeah, it was very much effective. Unfortunately, उसके renovation नहीं हो पाया. We had 30 machines with us for e-challan, and that time we were topper in Maharashtra. हमने बहुत अच्छा उसका effectively use किया. What is the smart ID card concept for auto rickshaw owners? How did it happen? Yeah, वो As you said मैंने earlier. जब स्वप्नाली लाडका हुआ ना उसके बाद वो जब सेफ जर्नी एप्लीकेशन एंड ट्रैफिक स्मार्ट कार्ड एक साथ इन्वेंट हुआ है। Okay. उसमें एप्लीकेशन भी है, if you take savvy you can use that application, but if you are not, there is a traffic smart ID you can click and get it. The Samman's departments in Mumbai city traffic police was shut down long back. It resulted in traffic rules violation. Is any such department in Thane? Forward. That कभी summons वगैरह भेजते थे traffic के? Yeah, now we are sending summons at home also. Again, it's a different system in Thane. We are having very well equipped digital traffic control room. I will request you please आप मेरा control room देख लीजिए, तो वहाँ के जितने भी facilities है वो देख लीजिए. So we are having some added facility. हम लोग कैच करते हैं जिसने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया है, उसका फोटो होता है और उसके फोटो के साथ चालान उसके घर पे भेजा जाता है. So it is connected all major. Right now I am having 16 cameras, but very soon मेरे पास 64 cameras आ जाएंगे. So entire थाने will be covered. And उसका हम पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं. ये तो हुआ चलन का. अगर कोई ट्रैफिक रूल अच्छे से फॉलो कर रहा है और वो क्लिक हो जाता है तो उसके घर पे लेटर जाता है थैंक यू फॉर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, प्लीज एडिटाइज योर सोर्स. What makes an advanced traffic control room? What are the facilities Thane lacks at present? जैसे कि मैंने कहा मुझे थोड़ी और ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा चाहिए. बाकी की तो फैसिलिटीज एज इक्वल टू मुंबई वी आर हैविंग एंड आई विल रिक्वेस्ट यू आप देख लीजिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है. अगर वो लाइव देख पाएंगे तो आपके दर्शक भी देख पाएंगे. एंड जो दर्शक थाना के हैं खुशी से मैं कहना चाहूँगी कि आप आइए. मोस्ट वेलकम टू माई ट्रैफिक कंट्रोल रूम एंड डेफिनेटली यू विल फील हैप्पी कि थाने हाईएस्ट डिजिटल कंट्रोल रूम में से एक कंट्रोल रूम अपने पास है और हम सभी वो सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं जो अभी आप सिर्फ MNCs या बड़ी बड़ी कंपनियों में देख सकते हैं. Great, thank you, madam. There are many traffic-prone zones in Thane, added with Iran towing vans, that tow vehicles, even from parking zones. How you are managing? I know towing van is really headache for us, for every traffic department. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कम से कम 35 व्हीकल थाने में हर रोज आई एम टॉकिंग अबाउट सिटी कहीं ना कहीं तो ब्रेक डाउन होते हैं तो उनके लिए टोइंग वैन लगती है. बिसाइड्स पार्किंग नो पार्किंग के व्हीकल हटाने के लिए अभी मैंने टोइंग वैन पे कुछ एडेड फैसिलिटीज भी है हैविंग फॉर द मोर ट्रांसपेरेंसी. अगेन दिस इज ओनली फर्स्ट टोइंग वैन्स इन महाराष्ट्र जिसमें हमने CCTV लगाया है. मेरे और टोइंग वैन पे CCTV है, वो आपको और किसी भी जगह नहीं मिलेंगे. तो वो CCTV से कवरेज होता है. सेकेंडली नाउ वी स्टार्टेड विथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम. अभी हमारे टोइंग वैन जाके पहले अनाउंस करते हैं भैया हम यहाँ से गाड़ियाँ उठाने वाले हैं, अगर आपकी गाड़ी है तो आप लेके जाइए.
एंड हम 5 मिनट देते हैं। तो अगर आप आजू बाजू में है तो आइए, आपकी गाड़ी उठा के सही सलामत लेके जाइए, बाकी बची जो गाड़ी है वो वहाँ से उठाई जाएगी। CCTV का कवरेज अभी 15 डेज का वी आर सेविंग, सो इनकेस आपकी कुछ कंप्लेंट है तो आप खुद आके देख सकते हो कि 15 डेज का कवरेज मेरे पास है, कैसे गाड़ी उठाई, क्या उठाई। एंड वी आर हैविंग SOP। मैंने अभी तक 3 सॉफ्ट स्किल के उनके वर्कशॉप लिए हैं कि कैसे लोगों से बात करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली दिस टोइंग वैन के जो लेबर्स होते हैं प्राइवेट, दैट इज अनस्किल्ड लेबर, एंड उनका ऐसा होता है कि वो हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद बदल जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ स्किल्ड इंडस्ट्री और परमानेंट इंडस्ट्री। वो जैसे कि हम कहते हैं ना कि लेबर रेंट पे लेते हैं, उस टाइप का। सो अभी फिर एक बार चल रहा है, उनको सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो अच्छे से बात करें। हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा लोगों का सहयोग मिले तो ज़्यादा अच्छा है। In your opinion, girls should join police force. What changes are seen after you join the police? हर एक क्षेत्र में लड़कियों को आना चाहिए। इन माय ओपिनियन सिर्फ ग्लैमर देख के मत आइए, बिकॉज आपको सिर्फ बाहर से ग्लैमर दिखेगा, बट यहाँ आने के बाद आपको जो डिसीजंस लेने हैं, आपको जो काम करना है, तो उसके लिए आपको फैमिली लाइफ बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो थिंक ऑन दैट लाइन, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आप एक ऐसी लड़की हो जिसकी मानसिकता पूरी फैमिली लाइफ की तरफ है, जिसको हर त्योहार में शामिल होना बहुत अच्छा लगता है और वो मिस नहीं करना चाहती, और वो भी एक लाइफ है। मैं तो उस लाइफ को भी उतना ही रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर आप मुझे आज पूछो तो मेरे लिए सुपर वुमन कोई लेडी कॉप नहीं है, तो मेरे लिए एक हाउस वाइफ बहुत सुपर वुमन है, एक होम मेकर है, नॉट अ हाउस वाइफ, आई विल कॉल अ होम मेकर इज रियली सुपर वुमन, बिकॉज उसको एट अ टाइम इतनी सारी जिम्मेदारी झेलनी पड़ती है, शायद ही इतनी सारी जिम्मेदारी कोई और मर्द उसकी जगह कर पाए। सो हैट्स ऑफ टू ऑल वुमेन जो इतने सारे अच्छे तरीके से काम करती हैं। और वेलकम टू पुलिस फोर्स, वेलकम टू महाराष्ट्र पुलिस फोर्स। सिर्फ आपकी एक डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन होनी चाहिए और थोड़ा सा एक फैमिली एडजस्टमेंट जो आपको नॉट ओनली बिफोर मैरिज बट आफ्टर मैरिज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। Is there equality in police force in terms of women corps? Yes, why not? Obvious question है। When you say I salute the post and not the politician, what do you exactly mean? Do you mean that you may salute someone you don't respect? No, nothing like that. That question, I think during one interview somebody asked me that question. लेकिन जब भी हम सैल्यूट करते हैं, वो सैल्यूट जैसे कि इन आवर हायरार्की ऑब्वियसली वो पर्सन और पोस्ट दोनों को होता है, जैसे हमारे सीनियर है। बट एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था पॉलिटिकल मायने में कि कोई समझो कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी है और उसको सैल्यूट करना पड़े तो आपको कैसे लगेगा। सो इन दैट रिस्पेक्ट आई सेड कि ऐसा कुछ नहीं है। जो पोस्ट होती है वो मायने रखती है, उसमें आदमी बैठा है उससे ज़्यादा वो पोस्ट ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। That's it। मुझे वो अलग तरीके से पूछा गया था, आप मुझे अलग तरीके से पूछ रहे हो और किसी का डिसरिस्पेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज पुलिस सर्विस में हमेशा सिखाया गया है कि सबसे रिस्पेक्ट से बात करो, फिर वो हमसे बड़ा हो या हमसे छोटा। अगर आज कोई छोटा भी आता है हमारे सामने और कोई अंडर एज हो या कोई माइनर हो, उतने ही रिस्पेक्ट से और उतने ही सलीके से बात करनी चाहिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस के संस्कार है, ऐसे नहीं है, मेरे माँ बाप के भी संस्कार है। Your grandmother is a super woman for you. Does it mean that you didn't have any affection or charm for a Superman, Batman or He-Man like characters in your childhood? Yes. एक्चुअली आप बचपन में जैसे देखते हो उनको देखते हुए बड़े हो जाते हो। अभी मेरी फैमिली में मेरे सगे चाचा थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉक्स के डिवीजन में। सो वैसे तो मैंने बहुत सारे पोस्ट में, मेरे पिताजी खुद बैंकर थे, बट मेरी दादी जो थी वो 1927 की टीचर थी जो बाद में प्रिंसिपल बन गई। जिस जमाने में औरत का सीखना, उसके बाद जॉब करना, उसके बाद बच्चों को संभालते हुए जॉब करना, इट्स अ बिग थिंग। एंड मैंने उसको हमेशा घर में ऐसा देखा है कि जो भी डिसीजन है, भले ही मेरे फूफा फूफी चाचा चाची बड़े बड़े पोस्ट पे हो, लेकिन जब
घर के डिसीजन का बात आता था तो दादी जी को आके पूछते थे, या कभी भी किसी ने दादी जी के सामने कुछ प्राउड या कुछ ये ईगो नहीं दिखाया। हमेशा जब भी दादी जी के सामने आते थे एक झुक के एक रिस्पेक्ट के साथ आते थे, और जो डिसीजन है वो मेरी दादी जी बहुत सलीके से देती थी। तो मैंने वो सीखा है उनसे, मैंने वो देखा है। एक मातृसत्ता पद्धति जो होती है कि जो मातृदेवो भव तो हम कहते हैं, लेकिन मैंने वो बचपन से देखा है। और क्यों ना हो, जिस जमाने में नौकरी करना की संभावना नहीं थी, उस जमाने में उन्होंने जॉब किया, जॉब के साथ बच्चों को पढ़ाया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। तो आई थिंक वो सुपर वुमन मेरे लिए है और रहेगी। और आफ्टर ऑल ये जो कलेक्टर बनने का ख्वाब है वो उसकी वजह से मेरे दिमाग में है। अदरवाइज छोटी बच्ची को क्या मालूम कि क्या बनना है और क्या नहीं बनना। Is family life simple for a cop like you? It is not. It's not simple, but again I'm fortunate enough that my in-laws are also very supportive. Okay. How do you do in your leisure time? If at all you get some. I love reading. मैं बहुत different kinds की books पढ़ती हूँ। अभी मैं एक वैशाली की नगर बधू, एक हिंदी किताब तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, वैशाली की नगर बधू उसका नाम है। मैं मराठी पढ़ती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ लेती हूँ। देन आफ्टरवर्ड्स मुझे ट्रेकिंग की एक हॉबी है। So you like trekking? हिमालयस ओनली। तो अगर मुझे बहुत Sport? Any sport? Which sport you like? Not sports, but I love trekking. मुझे हिमालयन स्पेशली विंटर लद्दाख ट्रेकिंग बहुत अच्छी लगती है। देन उसके बाद मुझे म्यूजिक, जो ओल्ड म्यूजिक है 50s 60s एंड ऑल, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप लगेगा। नहीं, अरिजीत भी मैं सुन लेती हूँ अच्छी तरह से। ऐसा नहीं है कि मैं आज की जनरेशन से कनेक्ट नहीं हूँ, बट somehow I love it. What suggestions and advice you would like to give to new students who aspire to become IPS and IAS? आपको एडवाइस देने की बड़ी उम्र तो मेरी लगती नहीं है, but still डेडिकेशन, मोटिवेशन, फर्स्ट तो मोटिवेशन के बाद डेडिकेशन, हार्ड वर्क के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर कोई कहेगा कि इतनी सी किताब पढ़ के आप हो जाओगे तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड सैक्रिफाइसेस। ऐसा लगता है कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद कि और थोड़ा मजा करूँ, मस्ती करूँ। वो टाइम अगर मजा मस्ती में चला जाए तो फिर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं लगता, और पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो कुछ कोई भी करिए, वो IAS हो, IPS हो, कुछ भी सिविल सर्विस हो, या फिर अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर या उस क्षेत्र में भी कुछ करना चाहते हो, आप कौन सा भी फील्ड चूज कीजिए। अभी उस जमाने की बात नहीं रही कि सिर्फ मेरे बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना कोई अच्छा है। तो एक्टर से लेके फैशन डिजाइनर से लेके बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि मीडिया और जर्नलिज्म भी उसमें एक है। तो जो भी आप करियर चूज कर लीजिए, उसके टॉप पे रहिए। टॉप पे तो कॉम्पिटिशन होती नहीं, लेकिन सिर्फ वहाँ तक चलने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, वो चलना पड़ता है। But your last question, what message you would like to give to your department and Thanekar and also Indian bound reader? जी, मैं थानेकर्स को कहना चाहूँगी, और थानेकर्स के लिए हमारी टैगलाइन बहुत अच्छी है। इट्स अ यूथ कनेक्टेड टैगलाइन, इफ यू आर कूल फॉलो द ट्रैफिक रूल। सो थानेकर्स अगर ट्रैफिक रूल फॉलो करे तो जितना भी ट्रैफिक का कंजेशन है या प्रॉब्लम्स है वो थोड़े कम होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट पहनिए, बिकॉज हर 3 मिनट में हम लोग एक कैटल हो रहा है और हर 4 मिनट में हम ग्रीवियस इंजरी पा रहे हैं। और हमारे थाना पे भी महीने में कम से कम 4 या 5 फैटलिटीज़ हो रही है। बहुत बुरा लगता है, किसी का घर का कोई जाता है तो वो दुख बहुत असहनीय होता है। अगर आप चाहते हो आप सेफली लाइफ जिए और अच्छे से जिए, आपके घर में कोई ग्रीवियस इंजर्ड ना हो, तो प्लीज़ 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 गाड़ी सेफ्टी से चलाइए। रोड सेफ्टी के 2-4 ही नियम है, जैसे हेलमेट है, सीट बेल्ट पहनना है, नो रैश ड्राइविंग, नो व्हीलिंग, नो ओवरटेकिंग, ये मोबाइल पे बात मत कीजिए, ये डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सबसे महत्वपूर्ण ये है। तो अगर ये बेसिक रूल्स जो आई थिंक एक कॉमन सेंस की तरीके से बेसिक सिविक सेंस भी है, ये 4-5 चीज़ें भी आप फॉलो करें तो मुझे लगता है कि आप हैप्पीली और सेफली रह पाओगे। सो फॉलो द ट्रैफिक रूल एंड बी कूल एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच मैडम। आप थी डॉक्टर रश्मि करंदीकर, DCP ट्रैफिक थाने, Indian known. She has given enough time to Indian known for exclusive interview. We
Wish you a great success, madam. May God bless you long life. Thank you very much.